والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وعليك السلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اپنے اللہ آپ پڑھ تعالیٰ جائے علیہ کوئی وسلم. آپ کو پڑھائے کیوں؟ بارش بھی ہے، وقت بھی قلیل ہے، اور حضرت علامہ مولانا مختار عالم رضوی صاحب جی دامت برکاتہ ملالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. ابھی آپ کو ان کا بھی بیان سماعت کرنا ہے. خیر، اگر آپ بیدار ہیں تو میں کچھ بول لوں ورنہ پھل لوں، ہے نا. شاعر کہتا ہے کہ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، بول یار سبحان اللہ. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. سبحان اللہ. صدا صدا حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا حسین ہے. اور شان اہل بیت دیکھ. اہل بیت کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا، کہ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے. حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے. سبحان اللہ. حسین بس حسین ہے. اور یہ مصرع شاعر نے دل کے قلم سے کچھ اس طرح لکھا ہے. آپ اگر اپنے دلوں کو کھولے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. سبحان اللہ. ہے نا بھائی. یزید جیت گیا، جنگ تو جیت گیا، لیکن شاید ہی محلے میں کوئی ایسا بچہ ملے جس کا نام یزید ہو. ہے کیا؟ الحمدللہ ہمارے محلے میں تو نہیں ہے بھائی، ہمارے اسلام پور میں تو ہے ہی نہیں. باقی میرا یہ گمان غالب ہے، جہاں تک میں گیا ہوں وہاں تک کبھی نہیں دیکھا. لیکن ہر گلی کے ناکے میں 8-10 بچے ایسے ہی مل جاتے ہیں جس کا نام عباس ہو، حسین ہو. ملتے نا بھائی، مل ہی جاتے ہیں. تو شاعر نے کہہ دیا کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. اور حسین باقی کیوں ہے؟ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. حسین باقی کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کی زندگی جس چیز کی حفاظت پہ قربان ہو گئی وہ دین تھا. بول یار. یہ بار بار جگاؤں گا میں اگر آپ کو تو اس کا پھر ٹیکس بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی کنٹرول کریں، تھوڑا مجھے بھی کنٹرول ہونے دیں. میرے عزیز بھائیوں، آج یہ محفل جو ہے 40ویں کے سلسلے میں ہے نا، سب جانتے ہیں. اور میں اللہ کرے میری بات غلط ہو جائے، اکثر لوگ یہاں دعوت پوری کرنے آئے بس کہ خورشید بھائی کے گھر میلاد ہے، دعوت ہے، جانا ضروری ہے نہیں تو برا مان جائیں گے. ہے نا بھائی؟ ہے بھائی. اکثر لوگ، اللہ کرے میری بات چھوٹی ہو جائے. لیکن پہلے تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ ہم اس محفل میں آئے ہیں ثواب کے ارادے سے. امین چچا کیا مانتے ہیں، خورشید بھائی جمشید بھائی کو کیسا لگتا ہے، اس سے اپنے کو مطلب ہی نہیں. کیا اس سے اپنے کو مطلب نہیں، اپنے کو بس اللہ کی رضا چاہیے، ثواب حاصل کرنا ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے، اور جو سنیں گے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو محفل ہے یہ 40ویں کے سلسلے میں، بہت سارے 40ویں ہم نے دیکھے. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جیسا کہ ابو بکر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی 40ویں ہوں گے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ ہر جاندار شے کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب اس موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ لوٹری کاٹ کے کیسے کی جائے؟ یا ٹھیکے پہ جا کے، یا لوڈو میں بھی جوا کھیل کے کیسے کی جائے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. کامیابی آخرت کی کب ملیں گی؟ جب ہماری زندگیوں میں
100% दीन होगा अगर आप दौलत जमा करते हैं, बैंक बैलेंस जमा करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर आपने 5 माले की कोठी बना ली और आपका इंतकाल हो गया तो आपका बेटा बोलेगा अरे इसको पहले छोड़ दो, अरे रात भर मत रखो, रात भर रखना मुर्दे को मुनासिब नहीं है। आपने करोड़ों का बैंक बैलेंस जमा कर लिया, लेकिन जब आप मरते हो तो आपका बेटा कहता है कि 10 साल को बुला के लाओ, मैं गुस्ल नहीं दूंगा, मैं नहीं छू सकता, मुझे डर लगता है, घिन करने लगेंगे। आपके से जुड़ा हुआ जिस्म से, आपके मरे हुए जिस्म से जुड़ी हुई हर चीज, चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे आपका बिस्तर हो, चाहे आपकी चादर हो, हर चीज वो घर से निकाल देंगे, कभी फकीर को दे देंगे, कुछ चीजें फेंक देंगे, आपसे निस्बत रखने वाली चीजों को खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके मौत के बाद आपसे और आपकी चीजों से उसको घिन आने लगेगा, जिसके लिए आपने भड़कती हुई धूप के अंदर अपने पसीने को गला के दौलत जमा किया, खुदा की और खुलेआम नाफरमानी करते हुए बैंक बैलेंस जमा किया, कारोबार को जमाया, अपना सिक्का दबदबा बना के गए। लेकिन क्या होता है जब मर जाते हैं तो ये अपना सगा बेटा, सगा भाई कहता है अब इसको रखना गवारा नहीं। मेरे भाइयों, ना भाई वफादार रहा, ना मेरा बेटा वफादार रहा, ना रिश्तेदार वफादार रहे। वहां तक के बस्ती वाले भी कहते हैं अरे जल्दी ले चलो, जल्दी दफना दो, कब्रिस्तान में भीड़ मत करो, फटाफट मिट्टी देते जाओ। और अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ तो ये माहौल है कि कब्रिस्तान में जाके इतनी जल्दी मचाते हैं, इतनी जल्दी मचाते हैं जैसे कब्रिस्तान के अंदर इनको सांप काट रहा हो, इतनी जल्दी मचाते हैं। और शोर तो अल्लाह अकबर, पास लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जिम्मेदारी है, सब तुम ही कर लोगे। अपने मन की इतना जोर जोर चिल्लाते ना यार, काय बात के सुनिए हम। एक सुन्नी कब्रिस्तान में जाके खुलेआम कब्रिस्तान की बेअदबी करता है, एक सुन्नी कब्रिस्तान में जाकर जोर जोर चिल्लाएगा ये सुन्नियत है। अरे मेरे भाइयों, अगर कोई सोचता है कि ये सुन्नियत है तो आप गलत फहमी में हो। आपका जो अकीदा है, आप थोड़ा सा खाली है वो रॉन्ग है, आप गलत सोचते हो। सुन्नियत तो ये है कि जब एक सुन्नी धूप फेंकता है ना तो वो धूप फेंकने से पहले देखता है कि कहीं अदब के खिलाफ तो काम नहीं हो रहा। एक सुन्नी का ये एक सुन्नी की सोच होती है, इत्मीनानी। सुन्नी अदब को पहले सोचता है। अभी अगर बारिश से जो लोग भीग रहे हैं आ जाइए इत्मीनान से, अपना तफरी का माहौल ना बने, इत्मीनान से बढ़ जाइए इंशाअल्लाह। आइए ना, आइए, जगह हो गया सर, आइए ना, आइए ना, चलिए आइए, चले आइए, माशाअल्लाह बहुत अदब से बुला रहे हैं। आप थोड़ा सा तवज्जो इधर भी, तो आएंगे आएंगे तो जाएंगे जाएंगे, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट दूंगा क्योंकि अभी बहुत बड़े खतीब बैठे हुए। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे अजीज भाइयों कि मौत की तैयारी हमें करनी है। अब कैसे करनी है? जिंदगी मौत का मालिक बेशक अल्लाह, ये सब जानते हैं, लेकिन एतमाद हमारा तब कमजोर क्यों हो जाता है? अच्छा किसी का कोई लोचा हो जाए ना, पैसा भी सब चले जाए तो फट से बोलेंगे अल्लाह की मर्जी यही थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। लॉटरी लगेगा तो नहीं बोलेंगे, लॉटरी में ऐसा मामला नहीं होगा। अच्छा लॉटरी काटे क्यों है? सोचते भाई 40,000 लग जाए, काम तो निकल जाएगा, घर के पीछे का दीवार बाकी है वो भी हो जाएगा, ऊपर का छत का कलर बाकी है वो भी हो जाएगा, बच्चा लोग को एसी चाहिए वो भी हो जाएगा, टमाटर टीवी चाहिए वो भी हो जाएगा। ये सोच लेके काट लेते हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर हम अपने तकदीर का फैसला, अपने घर का फैसला, हमारा घर कैसा होगा, हमारे बच्चे किसमें पढ़ेंगे, हम बगान में पढ़ेंगे या गाइस कॉलेज में पढ़ेंगे, इसकी फैसिलिटी, इसका फैसला अगर लॉटरी जैसे गलीज चीज को दे देते हैं, हम लॉटरी पर निर्भर हो जाते हैं, तो किस बात के मुसलमान है हम, किस बात के सुन्नी है? अरे ये सुन्नियत बेकार है तुम्हारी, कि हमारी सुन्नियत का दावा करना, अपने आप को सुन्नी मुसलमान बताना, ये सब फिजूल है, ये धोखा है। हकीकत तो ये है कि सुन्नी सच्चा सुन्नी होता है, वो जब सुबह उठता है तो पहले देखता है मेरी फजर की नमाज कहाँ है। एक सुन्नी जब उठता है तो देखता है ऐसा तो नहीं जब मैं उठा और बिस्तर से उठते वक्त मैंने सुबह उठने की दुआ नहीं पढ़ी। एक सुन्नी जब नहाता है तो देखता है कि मैं नहा रहा हूँ सुन्नत के मुताबिक। एक सुन्नी जब बात करता है, जब गुफ्तगू करता है तो गाली गलौज नहीं करता, उसके बात का अंदाज ऐसा होता है कि वो देखता है कि मेरा बात सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। मेरे अजीज भाइयों, हम ऐसे चलते चले गए, ऐसे बिदातों को आम करते चले गए, जहालत को आम करते चले गए कि हमारी जिंदगी
जिंदगी के एक कोने में भी शरीयत बाकी नहीं रही, सुन्नत बाकी नहीं रही, फिर भी हम बड़े शान से कहते हैं कि हम सुन्नी है। क्या सुन्नी? कोई सुन्नी नहीं, फिजूल है, फालतू है। अगर एक सुन्नी अपने आप को सुन्नी बताता है तो पहले उसको चाहिए कि अपना किरदार दुरुस्त करें। हम लोग तो सुन्नी है भाई, बाप दादा सुन्नी थे। अब अगर कोई वहां से गुजरता हो सलमान चौक के पास से कि हजरत बोल रहा है यहाँ पर सुन्नी नहीं है, तो चांस मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये अलग मैटर है, ये घर का मैटर है। ये सुन्नियत की क्वालिफिकेशन, ये डिग्री अलग है। और अगर कोई गुस्ताखे रसूल हमारी बस्ती में एंट्री करे तो मैं खुलेआम कहूंगा, अरे तुम्हारे गालों पे हमारे तमाचे इतने भारी है कि अगर एक सुन्नी का तमाचा, जैसे उलमाए किराम बैठे हैं, इनके इल्म का तमाचा, ये हाथ का तमाचा तो काम का नहीं है, इनके इल्म का तमाचा पड़ जाए ना तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बहरी पैदा होंगी। हम पक्के सुन्नी है भाई, हमारे बाप दादा भी सुन्नी थे, हम भी सुन्नी है, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी सुन्नी रहेंगी। लेकिन हकीकतन सुन्नियत क्या है? सुन्नियत क्या है? आज अगर आप सुबह उठ के आंख मलते मलते घर से ब्रश लेके निकले तो आप 80% मुसलमान सुन्नी बच्चों, माने हम तो सब सुन्नी है, मुसलमान बच्चों को देखेंगे कि पैंट यहाँ से फटा हुआ, फकीर का बच्चा है वे, गरीब का बच्चा है। नहीं, बाप का फिर मौलवी साहब, मेरा बाप का बाजार में इतना बड़ा दुकान है, मेरा बाप वाले बैंक में वो है, मेरा बाप मास्टर है, इतना जमीन है, देहात में इतना और लेके रखे और वहां पे और इतना लेके रखे, लेकिन पैंट दे यार। अब क्या हो रही, बाल ऐसे कटे हुए इधर से फिर इधर से, ऐसा लगता है इधर वाला बाल का हिस्सा जो है ना सर का गरीब है, इधर का फकीर है और इधर का ज़कात का मुस्तहिक दे यार। और कुछ लड़के तो गालियां ऐसे देते जैसे दुआ दे रहे हो, वाह खुले आम। और कुछ भाई दे दो, बड़े लोग खड़े, डरते क्या किसी से? किसी के बाप का खाते क्या? अरे क्या लगा रखा है यार, क्या लगा रखा है? इस्लामी मुआशरा है कि नहीं? मुसलमानों की बस्ती है कि नहीं? ये तुमको किसने इजाजत दे दी कि जब तुम जिसका खाओगे वही तुम्हें डांट सके? अच्छा, जिसका खाते हो, जो सुबह से शाम तक खिलाता है, जिसने तुम्हारे पैरों को चलने की ताकत दी, जिसने तुम्हारे आंखों को देखने की ताकत दी, जिसने तुम्हारे हाथों को छू के महसूस करने की ताकत दी कि सब थे कि नरम, आज उस रब की नाफरमानी खुलेआम करते हो, उसके बाद कहते हो किसी के बाप का खाता हूँ। अरे मेरे अजीज भाइयों, हमारी जिंदगियां उस वक्त हलाक हो जाए तो बेहतर है कि हम शरीयत में मुदाखलत करें, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए इससे बेहतर है कि हम सुन्नतों पे बदअमली करें, हम सुन्नतों का जनाजा निकाले। आज मेरी माँ बहन, अच्छा एक और बात अच्छा और ध्यान में आ गया, एक और बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये घर की महफिल है, कोई बाहर का है नहीं, मैं भी बाहर का हूँ नहीं, ठीक है। हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह अली नगर के जो है मेट है, अली नगर के बहुत जबरदस्त वाले पिल्लर है, इनके नजदीक तो सुन्नतों के जनाजा निकालने वालों की छुट्टी हो जाती है, बहुत जबरदस्त है। हजरत के साथ बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये सुन्नियत का आइटम बम है, जब फूटता है ना तो नजद की धरतियां हिल जाती है। तो मेरे अजीज भाइयों, हमारी औरतें, मैं एक ये पॉइंट बताता हूँ आपको, हमारे घर में मसलन ये बिट्टू भाई के घर में मेरी दावत हो गई, अबू बकर भाई साथ थे, इमाम साहब साथ थे, चले गए। अब बिट्टू भाई को चाहिए सब काम छोड़ के वो खुद हमें खाना खिलाए, ना कि घर के औरतों को बोल रहे आप खाना खिलाओ और पूरा काम करो, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, बिट्टू भाई मेरे से फ्रेंडली है, बचपन से उनके सामने बड़ा हुआ, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, उसको अलग कर दीजिए। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, बिट्टू भाई को देखिए बस, मिसाल है बस। लेकिन घर की पर्दा नशी औरतों का, हमारी माँ बहनों का किसी गैर मर्द को आगे